Hello friends, this is the third part of this PD MCQs. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 232 तक ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स में कवर कर लिया है. अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन वॉच देयर. वहाँ मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है दोनों पार्ट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 233. Where was the Shanghai Cooperation Organization SCO Summit 2024 held? So it was held in Astana. Astana is the capital of Kazakhstan. प्रीवियसली SCO में 8 मेंबर्स थे बट लेटेस्ट 9th मेंबर ईरान बना है. ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है. साथ ही में दैट SCO वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 2001. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which UN agency recently released the annual World Drug Report? So it has been released by the UNICEF. UNESCO जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज़ करता है, ठीक है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है. एंड WHO तो आप जानते ही हो, हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती हैं और जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो WHO साइन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन या बुरांस गार्डन हैज़ बीन ओपन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा उत्तराखंड. Which organization has recently launched the Jeevan Samarth initiative? So it has been launched by the LIC. Which party has won the UK parliamentary elections? तो ये लेबर पार्टी ने जीता है. पहले जो थे कंजर्वेटिव पार्टी का रूल था जिसके कैंडिडेट ऋषि सुनक थे, ठीक है. अभी लेबर पार्टी का रूल है. Who has been sworn in again as the Chief Minister of Jharkhand? So his name is हेमंत सोरेन. इसके पहले चंपई सोरेन वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम. हेड कोच कौन बने? तो ये बने हैं गौतम गंभीर. ये आप ध्यान रखना. बैटिंग कोच की मैं बात करूं तो करुण नायर. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बॉलिंग कोच तो बॉलिंग कोच बने हैं मॉर्नी मॉर्कल. Now, let's proceed to the next question. Which female cricketer has received the ICC Player of the Month award for June 2024? So it has been received by Smriti Mandhana of India. Which Indian won the bronze medal in the World's Junior Squash Championship? So the correct answer is Shaurya Baba. Kirti initiative, which was seen in news recently, is an initiative of which ministry? So this is an initiative of the sports ministry. In which state has the Ladka Bhau scheme been launched recently? तो लड़का भाऊ इज़ अ मराठी शब्द, ठीक है. तो कॉमन सेंस से हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है. महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 244 देखते हैं. Who inaugurated the India-Mauritius Friendship Garden in Port Louis? So it was inaugurated by, correct answer है S. Jaishankar. S. Jaishankar is the Foreign Minister of India, as we all know. Nitin Gadkari is the Road Minister, Highways and Road Minister. Rajnath Singh is the Defense Minister, and Amit Shah is the Home Minister in the new government. Who has been re-elected as the President of the European Parliament? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्टा मेट्सोला. Manolo Marquez of which country has been appointed as the head coach of the Indian men's football team? So the correct answer is Spain. Who will be honored at the Indian Film Festival of Melbourne IFFM 2024 for his contribution to Indian cinema? The correct answer is Ram Charan. How much money has BCCI contributed for the Paris Olympics campaign? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 8.5 करोड़. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एशियाज़ फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी वॉज इनाग्रेटेड एट विच प्लेस? सो इट वॉज इनाग्रेटेड इन फरीदाबाद. Education Ministry has launched Asmita portal in collaboration with whom? So it has been launched with collaboration of University Grants Commission UGC. Thomson Muller
recently retired from the international football. He is a player of which country? Thomson Muller is a player of Germany. Indian Spice Board has signed an agreement with whom to develop AI tools? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है. Who has recently become the 10th permanent member country of the Shanghai Cooperative Organization? तो ये इसका करेक्ट आंसर है बेलारूस. मैंने आपको बताया था 9th मेंबर ईरान है एंड 10th मेंबर जो है वो बेलारूस है. ये भी आप ध्यान में रखना. मसूद पेजेश्कियान has become the new president of which Muslim country? So the correct answer is Iran. Who has become the new Prime Minister of Britain? Keir Starmer. He belongs to the Labour Party. ठीक है. Next question. In which state did PM Modi recently lay the foundation of India's longest urban tunnel project? This is the Maharashtra थाने बोरीवली टनल इसका दूसरा नाम है. और अगर मैं लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करूं जो किसी सी पे बना है, ये भी यहीं पे है, विच इज़ अटल न्याय सेवा सेतु. ये भी आप ध्यान में रखना. अगर मैं फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो की बात करूं तो ये कोलकाता में बनी है. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. With whom has the DRDO developed the indigenous light tank Zorawar? तो ये बना है लार्सन एंड टूब्रो के साथ. When is the World Youth Skills Day celebrated every year? तो it is celebrated on 15th July. Next is, in which state did Home Minister Amit Shah inaugurate the PM College of Excellence? तो ये इनाग्रेट किया है मध्य प्रदेश में. Which country recently won the Copa America title? Important question हो जाता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं. करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना. अर्जेंटीना इज ऑल्सो द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप. द वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 was organized by whom? So it was organized by the ASI, Archaeological Survey of India. Who has recently launched the संपूर्णता अभियान? Important question हो जाता है. संपूर्णता अभियान has been launched by the नीति आयोग. ठीक है, नीति आयोग एक और मिशन कंडक्ट कराता है विच इज़ अटल इनोवेशन मिशन, जिसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स भी ओपन की गई हैं. तो ये भी आप ध्यान रखना. उसके बाद लॉजिस्टिक्स इंडेक्स इंडिया में नीति आयोग पब्लिश करता है. इसके अलावा SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स भी नीति आयोग जारी करता है. नीति आयोग की मैं बात करूं तो 2015 में फॉर्म हुआ था जब प्लानिंग कमीशन को एंड कर दिया गया था. नीति आयोग का फंक्शन क्या है? टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि यूनियन प्लस स्टेट्स एंड डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना ताकि ये सब अच्छे से काम कर पाएँ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with which bank did the government of India sign a loan agreement for preparedness against epidemics? So this has been launched with the help of Asian Development Bank. When was the Union Budget 2024-25 presented? हमें पता है कि जनरली 1 मार्च को बजट पब्लिश होता है, बट ये 2024 में 18th लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद यूनियन बजट को पेश किया गया है. हर 5 साल के बाद जब नई सरकार बनती है तो बजट गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद पब्लिश किया जाता है, और ये पब्लिश किया गया था 23 जुलाई को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड द हिस्टोरिक उदयगिरी केव्स इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है उदयगिरी केव्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में.
अगर मैं राजस्थान की बात करूं, यहाँ पे खेतरी माइंस हैं जो कि कॉपर के लिए बहुत फेमस हैं। एंड अगर मैं आसाम की बात करूं, यहाँ पे डिगबोई करके जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम की रिफाइनरी है। कर्नाटक की मैं बात करूं तो यहाँ पे कोलार माइंस हैं। तो ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखना इन स्टेट्स के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मित्र वन इनिशिएटिव। इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द यूरो कप 2024 टाइटल। यूरो कप का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently PM Modi was awarded the highest civilian honor of which country? Order of Saint Andrew Apostle। ये कौन से कंट्री का ऑर्डर है? दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ रशिया। Who was awarded the best agricultural state award for the year 2024? तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the principal advisor for the National Tuberculosis Eradication Program? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। ऑल्सो इन ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको आप ध्यान में रखना। सबसे पहला तो निक्षय पोर्टल है एंड निक्षय प्रोग्राम है। सेकंड, इंडिया ने एम किया है कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच वॉज इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये लोकेटेड है हमारा मध्य प्रदेश में। ICAR वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द रिसर्च इन विच फील्ड। सो इट हैज़ बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। द सेकेंड एशिया पैसिफिक APEC मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? So it will be held in India. The Indian government has announced how many US dollars to help the Palestinian refugees? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 million. India has successfully test fire Rudram 1 missile. Which type of strike missile is it? तो रुद्रम 1 जो है वो एयर टू सरफेस है। Who is the main sponsor of the Indian contingent in Paris Olympics 2024? Correct answer है Adani Group. The 16th Finance Commission has constituted an advisory council. इस advisory council के convener कौन है? तो इनके convener का नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता। Also 16 Finance Commission के अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो वो है डॉक्टर अरविंद पंगारिया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन। कब अपॉइंट करते हैं? तो एवरी 5 years। और इसका एम क्या होता है? एम होता है इसका टू डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू किसके किसके बीच में? स्टेट एंड सेंटर के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। स्टैटिक पोर्शन भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन 278 देखते हैं। तो क्वेश्चन 278 क्या है? हु वॉज द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स? तो PV सिंधु एंड गगन नारंग ने शरद कमल, A और C दोनों हमारे फ्लैग बेयरर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 279, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द फ्रांस? तो ये दिया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका आंसर। विच मेल क्रिकेटर वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2024? सो द करेक्ट आंसर इज जसप्रीत बुमराह। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ रिसेंटली लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रैचल रीव्स।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? करेक्ट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र के ओझा। साउथ एशियाज़ लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो ये इस्टेब्लिश होने वाली है महाराष्ट्र में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इट वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की सेपरेट एक वीडियो डाली है मैंने इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज़ नाम से, अगर आपने वो सीरीज़ देखी होगी या आपने वो वीडियो देखी होगी, अभी मैंने फर्स्ट ही पार्ट उसका अपलोड किया है, 40 मिनट्स का वो पार्ट है, तो ये क्वेश्चन तो आप मज़े मज़े में कर लोगे और इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, वो वीडियो को ज़रूर देखना एक बार, उससे आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वो आपको मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया। ठीक है, वो एक बार ज़रूर देखना। नाउ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल? सो ये मिली है अभी हंगरी को। Which union minister has recently launched the Nirman portal? So it has been launched by J. Kishan Reddy. With which country has India conducted nomadic elephant exercise? Mongolia is the correct answer. Again वो वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें से अभी तक 6 से 7 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, अब बताओ 40 मिनट्स की वीडियो है वो सिर्फ, उसको 1.5x पे देखोगे तो अराउंड 25 मिनट्स में आप पूरी देख लोगे, तो वहाँ से ही अभी तक 6-7 क्वेश्चन आ गए। विच बैंक लॉन्च दी MSME सहज फैसिलिटी? तो ये किसने लॉन्च की है? इट हैज़ बीन लॉन्च बाय दी SBI। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन दी अंडर 19 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024? तो 8 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड? इट इज़ हेल्ड in India and Sri Lanka. Who won the Smart Catch of the Match award in the final of the T20 World Cup 2024? So ये सूर्य कुमार यादव। Minami Torishima Island which was in news belongs to which country? ये places in news जो पोर्शन होता है ना, places in news का, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान में है ये। Which state has recently announced to set up Prime Minister Excellence College in every district? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। Who qualified for Paris Olympics 2024 through University quota in swimming? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्री हरि नटराजन एंड धानिधि दे सिंघू। Who has become the new member of the regional security group Colombo Security Conclave? बांग्लादेश इज़ द न्यूएस्ट मेंबर। श्रीलंका, इंडिया ये तो पहले से ही मेंबर हैं। ठीक है, बांग्लादेश अभी नया मेंबर बना है। वेयर वॉज द नेटो समिट हेल्ड रिसेंटली? नेटो की समिट हुई है वॉशिंगटन में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल रिसेंटली? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा शंकर नारायण। वेयर वॉज द इंडियन ओलंपिक रिसर्च एंड एडुकेशन सेंटर लॉन्च्ड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। वेयर वॉज द ग्लोबल AI समिट 2024 हेल्ड? ये हेल्ड हुई थी हमारी न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो? कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क रूट। पेन पिंटर प्राइज 2024 का किनको मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसका कि करेक्ट आंसर है हमारा अरुंधति रॉय। हु हैज़ बिकम द 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये अलायंस हमारा 2019 के अराउंड बना था। किसने फॉर्म किया था? तो इंडिया प्लस फ्रांस के जॉइंट इनिशिएटिव ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम या गुड़गांव, विच इज़ इन न्यू दिल्ली या हरियाणा। न्यू दिल्ली तो नहीं, हरियाणा में है ये, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो 100th कंट्री कौन सी है जिसने ज्वाइन किया है? तो वो कंट्री है हमारी पराग। रिसेंटली होपेक्स वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री?
करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इजिप्ट। When is इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार का योगा डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ इंडिया में? तो श्रीनगर, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट हुआ है। एंड कितने तारीख को? तो 21 जून को सेलिब्रेट होता है। Who has been elected as the 18th लोक सभा स्पीकर फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। Which city has recently been declared the India's first city of literature by UNESCO? It is Kozhikode of Kerala। अगर मैं सिटी ऑफ म्यूज़िक की बात करूं तो सिटी ऑफ म्यूज़िक का टाइटल मिला है ग्वालियर को। ग्वालियर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। Now next question is, where is the second military station in the country to build a road made of plastic waste? कहाँ है ये? तो ये है हमारा जयपुर मिलिट्री स्टेशन। हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडियन रेसलर वॉन इन दी अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड इन अम्मान जॉर्डन? कितने मेडल्स मिले हैं? तो ये 11 मेडल्स मिले हैं इंडिया को। हु टू कोर्ट है द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भर्तृहरि मेहता। The International Astronomical Union has approved the naming of two craters discovered on which planet as Mursan crater and Hilsa crater after the two small towns of Uttar Pradesh and Bihar। Important question है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये क्रेटर्स मिले हैं मार्स पे। How many medals did India win in the ब्रिक्स गेम 2024? ब्रिक्स गेम में कितने मेडल मिले हैं इंडिया को? तो इंडिया को मिले हैं 29 मेडल। According to a recent report, which country has become the country with the highest per capita GDP in the world? कौन सी कंट्री है? तो ये है लग्जमबर्ग। Who has been appointed as the leader of House in the राज्य सभा? Important question है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? तो JP नड्डा। With this we have completed 100 questions of this PD। Next part 4 में हम rest of the questions को करेंगे। Till then keep studying। Thank you।